Talk about one historical experiment, which is N-Vincent's experiment. So in order to fold, we need to see, okay, what are the interactions involved, and N-Vincent's experiment led to some very profound conclusions. First, that all the information to form a native structure of a protein is contained in the primary structure. ठीक है, and primary structure is what? It's the sequence of amino acids basically. And then second was that weak interactions are very important for the formation of strong interactions or covalent interactions. So what was his experiment? I told you in that lecture is summary for all these lectures, but you require everything in notes form. तो हम notes form में भी कर रहे हैं, but उसको सुनोगे आप, right? उसके लिए इसलिए मैंने उसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं डाला, सच दैट आप सिर्फ ईयरफोन्स लगा के उसे सुन सको एंड फ्लो को फील कर सको. अब N-Vincent's experiment, he worked on protein RNase A, which is a globular protein. It's a tertiary structure and made up of single polypeptide. ठीक है, उसके बाद अब टर्चरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, हम क्या पढ़ते हैं, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड अल्फा हेलिक्स में, बीटा शीट्स में, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड पे आते हैं. उसके बाद हम टर्चरी में आते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में, एंड दीज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस ये स्टिक करते हैं हमारे साथ और किसी भी प्रोटीन की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. सो टर्चरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय कोवेलेंट एज वेल एज नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. इन केस ऑफ RNase A, कोवेलेंट में आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एंड इन नॉन कोवेलेंट यू हैव व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Okay, so what he did, what, for example, your RNase A is there. So firstly he saw that there are 4 disulfide bonds present. First he studied, this question should come to your mind, that how did he know? So he studied this protein, that how many amino acids are there. For those amino acids उन्होंने क्या किया होगा? Sequencing की होगी. I'll tell you, इसके बाद का lecture sequencing पे ही आएगा. I'll connect everything. तो first he studied that protein, he get to know कि okay 4 disulfide bonds are there. So disulfide comes under covalent interactions. So what he did, he tried to disturb every force which was possible. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक denaturant लिया as well as a reducing agent लिया. Denaturant for the removal of your non-covalent forces and reducing agent ताकि covalent forces निकल जाएं, मतलब disulfide bridges चले जाएं. तो basically after beta mercaptoethanol के बाद like treatment it becomes SH. initially ये क्या था? SS. अगर single polypeptide है तो intra disulfide bonds are there, intra disulfide bridges are there. So basically after beta mercaptoethanol's interaction it will become what? SH. it is now in reduced form and urea की वजह से it is denatured, and आप देख सकते हो एक straight line path में आ गए. So it's a denatured protein, and what do we see? That there are just amino acids present. Okay, so amino acids का जो arrangement होता है, this is primary structure. Primary structure में तो कोई भी building नहीं बनी है, right? Just amino acids are lying adjacent to each other, right? तो अब क्या किया, पता चल गया कि ओके फाइन, अगर मैं नॉन कोवेलेंट एंड कोवेलेंट इंटरैक्शन दोनों को रिमूव कर देता हूँ तो यह प्रोटीन गेट्स टू इट्स मिनिमल शेप जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, राइट? अब उन्होंने देखा कि अब अगर हमेशा एज अ रिसर्चर आप क्या करते हो कि अगर आप किसी का लॉस ऑफ फंक्शन करते हो या माइनस करते हो कुछ, तो आप उसको प्लस करके उसका रिवर्जन भी देखते हो. तो आपने माइनस कर दिया दोनों के, दोनों को आपने ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे प्लस किया था, अब आप दोनों को माइनस करोगे, दोनों को आपने रिमूव किया तो आपकी प्रोटीन वापस से फोल्ड हो गई, प्रोटीन फोल्ड हुई, नेटिव स्ट्रक्चर में आ गई. यू गेट टू सी कि यूरिया एंड मर्कैप्टोइथेनॉल वर डिस्टर्बिंग द इंपॉर्टेंट फोर्सेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नेटिव फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन. ठीक है, यहाँ पे वापस से आपने यूरिया मर्कैप्टोइथेनॉल हटाया. अब आप क्या जानना चाह रहे हो, दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जो नंबर में ज़्यादा है फोर्सेज. नंबर में ज़्यादा कौन से फोर्सेज हैं? हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस. तो हमने हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस या नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस को बनने दिया, राइट? हमने उन्हें बनने दिया, बट हमने कोवेलेंट के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं बनने दी, उल्टा किया, सॉरी. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूरियास को वापस से दिया ताकि आपके जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल रिमूव कर दिया ताकि डाइसल्फाइड ब्रिजेस ना बन पाए. तो हमने बेसिकली कोवेलेंट डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाए, तो हमने कोवेलेंट इंटरैक्शंस को एज इट इज़ रखा. ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो आपके कोवेलेंट इंटरैक्शंस थे, कोवेलेंट थे यानी कि डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन, इसको फॉर्म होने दिया. कैसे फॉर्म होने दिया? हमने बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल को रिमूव कर दिया.
जब हमने रिमूव किया तो आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में हमने यूरिया भी दिया। तो यूरिया क्या करेगा, यूरिया आपके जितने भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होंगे, है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, एन ऊपर लिख देंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है उनको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो अब लेकिन डाइसल्फाइड ब्रिजेस तो बनते हैं, तो उनने देखा कि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन रहे थे वो फॉर एग्जांपल इधर पे आपकी चेन फोल्ड हो रही थी, ठीक है, 3D में आप इमेजिन करोगे इसको, अगर यहाँ फोल्ड हो रही थी इनिशियली जब आपके पास क्या था, जब आपने यूरिया भी नहीं दिया था और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी नहीं दिया था, अब आपने जब इसको ओनली यूरिया ट्रीटमेंट दिया, फॉर एग्जांपल ये 1 और 4 के बीच में बन रही थी, तो अब जो है आपका जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं वो हो सकता है 2 और 6 के बीच में बने। मतलब बेसिकली द पोजीशनिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड वो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि आपके जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस थे वो आपने डिस्टर्ब कर दिए। तो इट गेव अस अ कंक्लूजन कि जो आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब अच्छा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की नहीं फॉर्म होने से क्या प्रॉब्लम आई होगी, तो आपकी प्रोटीन की स्टेबिलिटी में फ़र्क आ गया, ठीक है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी में फ़र्क आया तो उन्हें पता चला कि कुछ तो ऐसा है, फोल्डिंग बेसिकली इज चेजिंग स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उन्हें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को हटाया, यूरिया को दिया, तो पता चला नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जिनको कि यूरिया डिस्टर्ब करेगा उनके ना होने की वजह से डाइसल्फाइड ब्रिजेस रॉन्ग कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में बन गए हैं। रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बनेगा सिस्टीन में ही लेकिन पोजीशंस डिफर कर गई हैं, ठीक है। तो अब यूरिया यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस को इफेक्ट नहीं करता, बट ये डिस्टर्ब कर देता है वीक इंटरैक्शंस को, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपका एनफिन्जन्स एक्सपेरिमेंट खत्म होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रोटीन फोल्डिंग, बस एक पैराग्राफ में। एंड ये जो नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मोर देन इनफ इसलिए कहती हूँ बिकॉज इट गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट दी कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज योर टास्क, कहीं पे अटक रहे हो उसको बार बार प्रैक्टिस करना इज योर टास्क, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।